हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में कि हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स। हम सबको अपनी फंडामेंटल राइट्स बहुत पता है, लेकिन हम एज अ सिटीजन्स हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले प्रिंस रिविजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 has already started and special classes festival is taking place, and it had already started from 5th September 2020, and we have 400 plus live free classes. So don't waste your time and enroll for an academy. So we have UPSC, an Academy UPSC Championship 2.0. We have All India free mock test series for everyone. UPSC CSE Prince 2020 to 21. We have Paper 1 GS. And you will get a chance to meet UPSC CSE 2019 toppers with top Unacademy educators and subscription scholarship. So it has already started on 30th August, 6th September, 13th September, 20th September and 27th September. So you all can enroll now on Unacademy. So as we know that exams are going to start from next month. So if you want to complete your preparation for UPSC, so you can join UPSC CSE 2020 with Unacademy. And this one subscription has unlimited benefits like we can learn live from our comfort of our home. Then you have unlimited access to all the resources. We have top educators of India on one platform. We have full syllabus coverage along with the regular doubt clearing sessions. We'll also give you test series so that you can know about your highs and low and improve on your lows so that you can score really well. Then we will provide you with the study material, along with we'll have answer writing sessions so that your preparation is done side by side, and all this will be done under our mentors and guidance. So please don't waste your time and enroll for this subscription. Then we have a one-stop solution for complete UPSC CSE preparation. As you all know that we have structure batches with top educators, and we have batches in Hindi, English and bilingual, which means that the instructions will be given in both the language. We are also giving 100% syllabus coverage, and we have vast range of optional. Then we'll give you Prince test series, main test series along with evaluation. Then you will have doubt clearing classes. Then you have daily current affair practice, and the mentors will also give you a performance analysis also, and they will also prepare you for the interview side by side. So UPSC CSE complete preparation batch courses has already started from 7th September 2020. You can also enroll now, and we have three batches. The first one is a bilingual batch in which the instructions will be provided in will be given in Hindi and English both, and the second is complete Hindi batch in which the instructions will be provided in Hindi along with PDF material also. So we have complete English batch for those who want to join this batch in complete English. So we have all three kind of batches, and if you feel comfortable you can join any one batch according to your preferences. Then if you subscribe now, then you will also get 10% extra off. You just need to apply this code, that is SIMPLEYT. So we are also providing daily current affairs test series that is completely free, and you will get this on your phone or laptop daily at 7:30 p.m. and you will get 20 questions, and you will have 20 minutes to solve them, and it will be for 40 marks. Along with that, you will get your test analysis also after your test. So if you really like our channel, then you can join on YouTube, Telegram or Facebook, in whichever social networking sites you are active on. So let's start with our class. So today we will talk about what are fundamental duties in the basic introduction. So basically, as we know, the rights and duties of the citizens are actually correlated and inseparable, and the original constitution contained only
द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब ये है कि जो राइट्स और ड्यूटीज हमारी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं है। और हमारे में ये भी पता चलता है जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं करी थी। उसके बाद जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्हें नहीं लगा कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में ये ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये जो ड्यूटीज है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर डाली गई थी और ये एज अ ड्यूटीज डाली गई थी। उसके बाद जो लेटर इन 1976 जो हम सबको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी, उसके बाद जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में वो 2002 में हुआ था और हमने इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी। अब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ से इंस्पायर्ड, जो हम सबको पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे और उन्हें वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी एज कम्पेयर टू प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म की और जो फ्री मार्केट वाली और डेमोक्रेसी वाली आइडियोलॉजी थी। तो वो उन्हें वहाँ से इंस्पायर होकर यूएसएसआर से उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी फंडामेंटल ड्यूटीज। और हम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब कंट्रीज उसमें ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जो एक ड्यूटीज के बारे में बताती है जो सिटीजन्स की होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो इम्पोर्टेंस देते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को उनकी ड्यूटीज ही पता चले, बिकॉज डेमोक्रेसी दो साइड से फंक्शन करती है। उसके बाद जो उनने ये देखा कि जो सोशलिस्ट कंट्री है वो भी इक्वल इम्पोर्टेंस देती है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को दोनों के लिए, सिटीजन के लिए। So therefore, USSR declared that the citizens' exercise of their rights and freedom was inseparable from the performance of their duties and obligation. So let's come on to the first committee that we'll talk about. The first committee is the Swan Singh Committee. अब ये जो कमेटी है वो हम सबको पता है कि 1976 में इस्टेब्लिश हुई है और जो सेटअप हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये कमेटी क्यों सेटअप हुई थी? कमेटी कांग्रेस ने इसलिए सेटअप करी थी कि ये रिकमेंडेशन बताए कि हमारी क्या रिकमेंडेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज में और जो नीड और नेसेसिटी है जो उस समय उनको इंटरनल इमरजेंसी के टाइम उन्हें लगा कि इस समय ज़रूरत है। जैसे 1975 से 1977 तक उन्होंने रियलाइज हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड होनी चाहिए। अब जो कमेटी ने रेकमेंड करा वो है इंक्लूजन ऑफ सेपरेट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेटी ये बोल रही थी कि एक पूरा चैप्टर होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम इंक्लूड करें। अब इसने ये भी बताया, इसमें यहाँ भी स्ट्रेस करा है कि जो सिटीजन्स है वो ऑलरेडी क्या होते हैं, कॉन्शियस हो चुके हैं अपने राइट्स के बारे में। अब ये टाइम है कि अपने वो राइट्स के साथ साथ वो अपने राइट्स के साथ साथ एक ड्यूटी भी परफॉर्म करे जो है कंट्री के टूवर्ड्स। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर पे थे उनने ये सब जो रिकमेंडेशन है उनने एक्सेप्ट कर ली जो इस कमेटी में बोली गई थी और ये इनैक्ट हुआ था हमारा 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो था 1976 में हुआ था। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट है उसमें और एक और पार्ट ऐड करा जो है 4A में ऐड करा था कॉन्स्टिट्यूशन के, और इस पार्ट में कंसिस्ट करता था 8 आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल 51A जो फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड करा था उन्हें 10 स्पेसिफाइड करे थे ड्यूटीज। जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी उसने डिक्लेयर करा था कि नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मतलब हमने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करी है, वो क्या थी, एक हिस्टोरिकल मिस्टेक थी जो हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। और उन्होंने ये क्लेम करा कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो फेल हो चुके थे ये ड्यूटीज ऐड करने के लिए। उसके बाद जो स्वर्ण सिंह कमिटीज है उसने ओरिजिनली, हमें ये तो पता है कि उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनने ऐड करी थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम ये देखते हैं कि इस कमेटी ने और भी सजेशन दिए थे जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं करे थे
उसमें से जो पहला है वो है कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate for the non-compliance with the refusal to observe any of the duties। अब ये कहता है कि पार्लियामेंट ये भी मतलब पेनल्टी लोगों पे या फिर पनिशमेंट दे सकता है जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ना फॉलो करे। उसके बाद ये है कि नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी called in question of any court on the ground of infringement of any fundamental right। तो इस कमेटी ने यही बोला है कि कोई लॉ ऐसा इम्पोज नहीं हो सकता कि हमने कि ये जो गवर्नमेंट है उन्हें क्यों पेनल्टी और पनिशमेंट दी है लोगों के लिए, तो ये हम बेसिकली क्वेश्चन नहीं हो सकता है कोर्ट में और इस आर्ग्यूमेंट पे कि ये हमारी फंडामेंटल राइट है। और जो उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरा उन्हें जो सजेस्ट करा था जो एक्सेप्ट नहीं वो था ड्यूटी टू पे टैक्सेस। तो सबके एक फंडामेंटल ड्यूटी है सारे सिटीजन्स की कि वो टैक्सेस पे करें। देन हम आते हैं इन 11 फंडामेंटल राइट्स में। तो अभी हम 11 फंडामेंटल राइट्स में आपको रीड आउट करूंगी। पहला है जो 51A में मेंशन है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं और अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। उसके बाद ये है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल्स। तो जो आइडियाज हैं हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए जो हमारे नेशनल स्ट्रगल में जिन से इंस्पायर्ड थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। उसके बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपनी कंट्री को अपहोल्ड करें, सबसे ऊपर जो है और प्रोटेक्ट करना है हमें सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर अपने कंट्री को हमें डिफेंड करना है और या फिर जो कोई नेशनल सर्विस है जब मिलेगी तो वो हमें करनी है क्योंकि वो हमारी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और हमें इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि हमें हार्मनी और जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है जो हम बात कर रहे थे प्रियम्बल में कि हार्मनी, पीस, फ्रेटर्निटी, जिन सब प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे वो यहाँ पे हमें दिखते हैं। वो था वो जो लोगों के अंदर होने चाहिए बेसिकली, जो सारे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शुअल डाइवर्सिटी सबके अंदर होने चाहिए। उसके बाद टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो हमें पता है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वे वुमेन डिग्निटी के खिलाफ है। तो उन सबको हमें टोटली ख़त्म करना है, हमारे ये फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हमें वैल्यू करनी है और प्रिजर्व करने हमारे जितने हेरिटेज है, कल्चर है, जो हमें सब मिला है उसको हमें बेसिकली प्रिजर्व करना है ताकि हमारी आगे की जनरेशन है उन्हें हमारे कल्चर और डाइवर्सिटी के बारे में पता चले। उसके बाद हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें आजकल पता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट पे इतने कंसर्न्स और इशू हैं। तो हमें क्या करना है, अपना बेसिक जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो बेसिकली ये सब जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होने चाहिए हर सिटीजन्स के अंदर। उसके बाद हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना और ताकि हम कोई वायलेंस ना करें। उसके बाद हमें एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना है जो सब इंडिविजुअल के लिए, ये कलेक्टिव एक्टिविटी है सबके लिए। और ये नेशन, इससे क्या होगा, इससे नेशन हमारा और ऊपर बढ़ेगा और हम और भी काफ़ी सारी अचीवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी से कुछ फीचर्स है। जैसे हम सबसे पहले जो फीचर बात करते हुए है कि सम ऑफ द मॉरल ड्यूटीज वाइल अदर्स आर सिविक ड्यूटीज। मतलब यहाँ से कुछ हमारे मॉरल ड्यूटीज और कुछ हमारे सिविक ड्यूटीज हैं जो हमें करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चेरिशिंग द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज अ मॉरल परसेप्ट एंड रिस्पेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज अ सिविक ड्यूटी। उसके बाद हम आते हैं दे रेफर टू सच वैल्यूज ऑफ इंडियन which have been part of an Indian tradition like mythology, religion, practices। और ये हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही एसेंशियली हैं जिसमें हमें कोडिफाइड करें कि टास्क ऑफ जो टास्क क्या कहते हैं इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है। उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं थर्ड पॉइंट में कि हमने ये जो फंडामेंटल
राइट्स हैं वो हमने अपने सिटीजन्स को दिए, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सबके लिए हैं, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या ना हो, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सबको फॉलो करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिबल इन नेचर, मतलब हम इसे कोर्ट में जाके हम इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये नॉन जस्टिबल है। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कोई डायरेक्ट एनफोर्समेंट नहीं मिलता जो कोर्ट से, और इसके बाद ये एक लीगल सैंक्शन भी नहीं है अगेंस्ट देयर वायलेशन। हाउएवर द पार्लियामेंट इज फ्री टू एनफोर्स देम एज अ सूटेबल लेजिस्लेशन। उसके बाद हम आते हैं क्रिटिसिज्म कि हमारे क्या क्या क्रिटिसिज्म है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के दिए गए हैं, वो पार्ट 4A में क्लियरली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने क्रिटिसाइज करे हैं। पहले चीज तो हमने ये बात करी कि जो लिस्ट है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के वो काफ़ी एग्जॉस्टिव नहीं है, और उसमें क्या होता है, उसमें सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ नहीं मेंशन है, जैसे हमारा सबको कि राइट टू वोट होना चाहिए और सबको अपना वोट कास्ट करना चाहिए, सबको टैक्स पे करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, और काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मिस हो गए हैं। उसके बाद जो ड्यूटी टू पे टैक्सेस हमने देखा था कि जब हमने बात करी थी कि कांग्रेस ने कौन सा नहीं एक्सेप्ट करे, उसमें ये भी था। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जो ड्यूटीज है काफ़ी वेग है, एम्बिगुअस है और काफ़ी डिफिकल्ट है जो जो आम आदमी है उसे समझने के लिए। और उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जैसे नोबल आइडियाज का मतलब क्या है, कॉम्पोजिट कल्चर का मतलब क्या है, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब, और भी काफ़ी सारे जो टर्म्स हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिटिक्स ने ये भी क्रिटिसाइज करा है कि एक कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट्स हैं जो ड्यू हैं टू द नॉन जस्टिबल नेचर, मतलब सेंसिंग कमेटी ने सजेस्ट करा था कि लोगों को पेनल्टी मिलेगी या फिर पनिशमेंट मिलेगी अगर वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं परफॉर्म करते। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो है कि देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक एज सुपरफिशियल। इसका मतलब ये कि दिस वाज बिकॉज द ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन as fundamental would be performed by people even though they are not incorporate, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी डालते हैं बट फिर भी लोग इसे फॉलो करेंगे। उसके बाद ये क्रिटिक्स ने लास्ट क्रिटिसिज्म जो दिया है कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज अपने पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे क्या है, उसकी वैल्यू और कम हो जाती है और जिसका सिग्निफिकेंस है। तो उन्होंने सजेस्ट करा है ये जो ड्यूटीज हैं वो हम पार्ट 3 में ला सकते हैं ताकि वो एक फंडामेंटल राइट्स की तरह बाकी सबको पता चले। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस हमारी है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो इतने सारे क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन के बाद भी कि फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत सिग्निफिकेंट है, क्यों? फर्स्ट ये पहला इसलिए क्योंकि ये सर्व करते हैं एक रिमाइंडर सारे सिटीजन को कि राइट्स के साथ साथ उन्हें ये भी कॉन्शियस होना चाहिए अपने ड्यूटीज़ के बारे में जो उसकी कंट्री के टूवर्ड्स है, उसके सोसाइटी के और बाकी सब सिटीजन्स के। उसके बाद ये एक वार्निंग सर्व करते हैं उन लोगों को जो एंटी नेशनल है और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जैसे बर्निंग नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन बिकॉज इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड अ कमिटमेंट अमंग एवरीवन, एंड दे क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सिटीजन आर नॉट जस्ट mere spectators but they're also active participants in the realization of their own national goals. And then we talk about that they will also help in courts in examining and determining the constitutional validity of a law. For example, in 1992, the Supreme Court ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds the law in question, it seeks to give effect to a fundamental duty. It may consider to be a law to be reasonable in relation to Article 14 equality before law or Article 19 6 freedoms, and it can also save such law from unconstitutionality. Then we can come on the last point that this talked about is that they are enforceable by law. Hence, the Parliament can actually provide for the imposition of appropriate penalty or punishment for the failure to fulfill any of them. So even H.R. Gokhale, who was a law minister,
gave the following reason for basically incorporating the fundamental duties in our constitution after 26 years of its inauguration. So he basically said that in post independent India, after the emergency in June 1975, a section of people showed no anxiety to fulfill their fundamental obligation fundamental obligation of respecting the established legal order. So, the provision of chapter on fundamental duties would be a sobering effect on the restlessness spirit who had a host of anti-national, subversive, and unconstitutional agitations in the past. Even Indira Gandhi, then the Prime Minister, justified the inclusion of fundamental duties in the Constitution and argued that the inclusion would help to strengthen our own democracy. And she also said that all these moral values of fundamental duties would not be to smoother the rights but to establish a democratic balance between making people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights. So the opposition in the parliament actually strongly opposed the inclusion of fundamental rights in the constitution by the Congress government. However, the new Janata government that was headed by, as we all know, Morarji Desai, in the post-emergency period did not annul the fundamental rights. Notably, the new government sought to undo many changes in the introduction of the constitution by 42nd Amendment through 43rd and 44th Amendment. So this shows that there was an immense full of consensus on the necessity of the fundamental duties in our constitution. So this is actually more clear with the addition of one more fundamental duties that was done in 2002 by 86th Amendment Act. Then let's end our topic by discussing the Verma Committee. So basically, Verma Committee on Fundamental Duties of the Citizen in 1999 identified the existence of legal provisions for the implementation of the fundamental duties, like the Prevention of the Insult to National Honor Act, various criminal laws in force, the protection of the Civil Rights Act, the Indian Penal Code, the Unlawful Activities Prevention Act, then Representation of People Act that provides a disqualification of members of parliament or a state legislature for indulging in corrupt practice. And then we come on to the Wildlife Protection Act in 1972 that actually prohibits the trade of rare and endangered species, and then the Forest Conservation Act in 19 that actually checks to indiscriminate the deforestation and diversion of the forest land for non-forest purpose. So thank you so much, and if you really like my video, then please like and subscribe.